السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیجیٹل تحقیق۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل کی تاریخ بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے اس عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھی جو 600 برس تک قائم رہی۔ وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین بھی تھا اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اگوس ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے تراکمستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالنا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے الچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل اپنے جانثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو اس نے دیکھا ایک صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ پہ اس نے اناتولیا پر قابض صلیبی سردار تیتوش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ یہ رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی جو بعد میں ارطغرل کی بیوی تھی، اور اس کا بھائی شہزادہ شاہیر بھی تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ سلجوق غیاث الدین کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی فیملی کو دمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور دہشت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے قریب تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلوں کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناتولیا کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کو ایشیائی کوچک مہم کا سربراہ نیمیان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ حائمہ خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی، ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے مائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے قباباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناتولیا کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نیمیان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
पड़ा। उसके मामू के वफात के बाद उसका मामूजाद दो दुर्गा कबीले का सरदार बन गया, लेकिन वो अपनी सुतेली माँ और किरदारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उस गुंदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ मिलाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो अर्तुगरुल को एनातोलिया जाने से रोक सके। अर्तुगरुल के भाई की पुश्त पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर सादुद्दीन कोपिक था। सादुद्दीन कोपिक एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपिक सुल्तान को मार कर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे अर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नोयान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत करने का फैसला किया। अर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसके हर फैसले पर रहनुमाई भी करते थे। उसके साथ साथ अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुश्त पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानसारों वालदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार ना हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान अर्तुगरुल के कबीले की खवातीन कलीन बनाने का काम करती रही और उन कलीन को बेचकर अनाज लाया जाता, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ जानदार कबीला था, जिसके सरदार जानदार बेग के बेटे उराल ने अर्तुगरुल की मुखालफत की और उसके कलीनों के काफले पर हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया, जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तजारत करते थे उस बाजार को हानली बाजार भी कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से जाना जाता है। इसका मालिक समून कुस्तुनतुनिया के सलीबियों का जासूस था। जब अर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने जानदार कबीले के सरदार के बेटे उराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपिक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन अर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ और उसने हानली बाजार के रूमी ईसाई ताजरों से अर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो इससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को वर्गलाया कि अर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सुल्तान को देने के बजाय खुद काबज हो गया है, लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही अर्तुगरुल का मदाह हो चुका था और तुर्कों की रिवायत के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मलकियत होता है। सुल्तान ने अर्तुगरुल को सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन को वापिस कुनिया बना लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने अर्तुगरुल को काराचाईसार कबीले को फतह करने का हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपनी एक फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में जानदार कबीले का उराल बे अर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आले आर और बहन इस्लाहान ने अर्तुगरुल का साथ दिया। आले आर जान फशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई उराल को अर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरबराह बना दिया और अर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्कत, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमले में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा पैदा हो गई। इस दौरान एक जड़म में किले का कमांडर वैसिलियस अर्तुगरुल के हाथों मारा गया और निकिया के शहंशाह ने आरस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरस ने अर्तुगरुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपिक और जानदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार बहादुर बेग के साथ मिलकर उसने अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने
उसने अर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर दिया और बहादुर बे की साजिशों में मदद की। अर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और जानदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शोहर नूरगुल को बना दिया। उसने निमट कर अर्तुगरुल से सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर किले पर हमला किया और किले पर कब्जा कर लिया। किले का गवर्नर आरस अपनी जान बचाकर भाग निकला। किले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। कारा चाइसार किला और हानली बाजार फतह करने के बाद अर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। अर्तुगरुल ने किले में अपने भाई सारिम को नायब सदर मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपिक की साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कुनिया चला गया। दुनिया में सुल्तान को इसने मीर सादुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाबाद और उसके नामजद जानशीन शहजादा खलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गैसुद्दीन कैकुबाद को सल्जूक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल के इल्जाम अर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। अर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सादुद्दीन कोपिक का कब्जा हो गया। उसने कारा चाइसार किले और उस इलाके से अर्तुगरुल की सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्प नामी किलेदार को सरदार आला और किले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गैसुद्दीन को इल्म हुआ कि उसके बाप को अर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी मां के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक ने कत्ल करवाया है, तो उसने अर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला बनाया और अर्तुगरुल को आजाद करवा दिया। सुल्तान गैसुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और अर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंप अर्तुगरुल ने को इस साजिश शख्स की इसलिए से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इसने गुनाल्प को कारा चाइसार किले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगत हिजरत कर गया। सोगत वो इलाका था जो इसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आजादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। इसने हानली बाजार भी सल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान उक्ताई खान ने दोबारा एनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नेबियान को ये काम सौंपा गया कि वो यहाँ तो सुल्तान गैसुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर एनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नेबियान ने जब सुल्तान गैसुद्दीन को 2 गुना लगान और अतात का हुक्म दिया तो इसने एक सुलहनामा देकर अर्तुगरुल को नेबियान के साथ उक्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नेबियान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका और नेबियान की बहन मारी गई। उधर जब अर्तुगरुल उक्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन माहदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन उक्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल को करार दे दिया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नेबियान ने उसका ताक़ब किया लेकिन नाकाम रहा। नेबियान वापस चला गया और उक्ताई खान के बेटे कदन खान को, जो इसका जानशीन था, उसे अनातोलिया के हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाग की जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगत जाने के लिए कबीले को तैयारियां करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगत की सरहद पर मौजूद किले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने किले के गवर्नर को मार दिया और किले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त निकिया के शहनशाह का बेटा प्रिंस थियोडर खुद उसके पास आया और उसे शहनशाह की जानब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगत में सलीबियों की जानब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगत हिजरत कर ली, जो कि अब अर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसेडाग की जंग में सल्जूकों को बुरी तरह शिकस्त दी और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम किलेदार कबीलों के सरदार, यहाँ तक के सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जूक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। गैसुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरान मंगोलों से सोना लेकर उनके मुफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे इज़ाउद्दीन कैकावस ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने निकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन खलीज अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खान बन गया, जो मशरक में तबरेज तक खून की नदियां बहा चुका था और अनकरीब एनातोलिया के बाकियों को रोंदने का मंसूबा बना रहा था।
इस दौरान अर्तुगरुल ने सोगत में अपना कबीला बसा लिया और वहां से मंगोलों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। लेकिन ये जद्दोजहद ज़ाहरी नहीं थी। ज़ाहरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलकुल ज़ाहर रुकनुद्दीन बैबरस और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान इज़ाउद्दीन कैकबस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उन दो बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी किले के गिरदार गवर्नर की तरफ से हमले के बाद अर्तुगरुल बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी तौर पर बसंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की साजिश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। अर्तुगरुल का सोगत से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूक वजीर बहाउद्दीन ने अमरुल्लु कबीले को सोगत में बसाने का फैसला किया। अमरुल्लु कबीले का सरबराह अर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी। सलीबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया और उनका सरबराह कमांडर ड्रैगोस था, जो अर्तुगरुल को सोगत से निकालना चाहता था। उसने अमरुल्लु कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम अर्तुगरुल के बेटे गंदूस एलप पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन अर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बुलाद बे उस कबीले का सरबराह बना। बुलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बाकी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपने इसलिए छुपाए हुए वो अल-बास्ती नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। अर्तुगरुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अल-बास्ती बुलाद बे के रूप में और ड्रैगोस सगूत के कलीसिया में जंगूश के रूप में। अल-बास्ती ने अर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया। अर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजर था। इस सूरत हाल में वो किसी मामूल इन दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के दो सरदारों को कत्ल कर दिया, जो कि उसके कबीले पर हमलावर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरिक बोके उसके मुकाबले के लिए सोगत आ गया। उसने अल-बास्ती की मदद की और अर्तुगरुल के खिलाफ चाल बुनने शुरू किए, लेकिन अर्तुगरुल एक दफा फिर अपनी जहानत से बच निकला। उसने ड्रैगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल-बास्ती भी जब खुलकर अर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल उन दुश्मनों से निपटने के बाद मगरब में बुरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरिक बोके को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने अकबर खान के वजीर को बेनकाब किया। एरिक बोके भी बुरका खान के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल ने बुरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बुरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो एनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। अर्तुगरुल कबीले वापस आ गया और अपने छोटे भाई दुंतार बे को कायम मुकाम बनाकर उस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसलिए गाजी इसके नाम का हिस्सा बन गया। 1280 में 90 साल की उम्र में सोगत में फौत हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा तमीर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और फराख इस्लाम की खातर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तराकमस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तमीर की गई है। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।